Is my voice clear? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Coming to the bus bar protection, yesterday we have completed the feeder protection. Now coming to the bus bar protection. Uh, what actually is bus bar? You might have studied in power system, which will have constant voltage and frequency on and और क्या हो सकता है? बस बार किसको कहते हैं? Constant voltage, frequency as well as short circuit current. That thing is known as bus bar. A bus bar is the one which you can say having a constant voltage, frequency as well as the short circuit current. And coming to the topics we study, how we select the CT ratio, suitable protection use of a bus bar, and what are the causes of faults in the bus bar, types of faults in the bus bar, etc. And now, what actually is bus bar? Bus bar is defined from a Latin word that is omnibus, matlab common for all. A bus bar is the one which from which your many devices are connected, or many components of power system are connected. It is, or you can say, a summation of all, or a common for all. It is common thing for all the power system. This is called bus bar. Suppose if you take this diagram, this one, यहाँ पे in I1 is the input current, I2 is the input current up to I input N1. These are the total input currents on the left hand side of the bus bar, where N1 is number of incoming lines and these are the outgoing lines. Here for incoming as well as outgoing, the common point is your bus bar. The bus bar is the one which is common for both incoming as well as outgoing lines. Here, if you take N2 as outgoing and N1 as incoming feeder or line, तो आपका जो बस बार होगा summation of k is equals to 1 to n I input k, where k tends to 1 2 3 4 up to n1, where n1 is number of incoming lines, that is equals to sum of the output currents, just like a KCL1. Incoming is equals to outgoing, or incoming plus outgoing is equals to 0, like that. If you take incoming as positive and outgoing will be negative, and plus minus total minus total minus, the sum of those will come into 0. Just like your bus bar is a constant voltage and constant frequency and constant short circuit current carrying device, which is common to all the incoming as well as outgoing feeders. Now, this is also called as nerve center of the power system, just like your nervous system for your body, human body का nervous system जो है, ऐसे ही एक बस बार जो है उतना इम्पोर्टेंट है, जैसे एक पावर सिस्टम को बॉडी की ह्यूमन बॉडी की तरह कंपेयर करोगे, ह्यूमन बॉडी में नर्व्स जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट आपको बस बार है, because everything is connected. Your human body has everything connected through your nerves. Those similarly, the every power system element, or most of
all the power system components are connected through a common point or common device known as bus bar. This thing you might have already studied. So now coming to what are the types of fault or causes of fault, reasons for fault. Fault क्यों होता है bus bar पे? One is the main reason is breakdown of insulation because of over voltages or foreign objects, etc. Though due to the over voltage, the voltage exceeds, then the insulation क्या होता है? insulation किसके लिए होता है? जब voltage level को टॉलरेट करने के लिए, अगर वो वोल्टेज ऊपर बढ़ गया तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली विल गेट ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन. इट मे बी एनी इंटरप्शन ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट भी आ गया उसकी वजह से भी आपका जो इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गया, दैट विल आल्सो कॉज योर ब्रेकडाउन. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर रोल नंबर इन द चार्ट्स. चार्ट पे लिख देना अपना रोल नंबर, ध्यान से भूलना मत. Now coming another reason, weakening of insulation, whether it is breakdown of insulation or weakening of insulation, both are causes of faults. The insulation weakening happens because of aging and the breakdown of insulation happens due to foreign objects or over voltage. This corrosion or salty water, these are the main reasons for occurrence of your fault. Now what are the protection schemes you can employ in order to isolate the healthy system from the faulty system? Suppose if there is any fault at the bus bar, how can you isolate the bus bar from the healthy system? As you are saying, it is common for all. If you isolate this, so many things that will get into effect. तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको एफिशिएंटली और फास्टली कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द बस बार प्रोटेक्शन में जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अगेन कम्स इनटू पिक्चर. अगर कोई भी चीज ले लो, अल्टरनेटर ले लो आप, अल्टरनेटर या जनरेटर ले लो या ट्रांसफार्मर ले लो या बस बार ले लो या फीड बार ले लो, everywhere the high speed protection scheme called as differential protection will be there for the protection. Whenever there is an internal fault, the differential protection is the one which is so efficient and so high speed and accurate type of protection you use for different equipments. And the first protection scheme for bus bar protection is also differential protection. What is differential protection? We have already studied. या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के टॉपिक में ही बस बार का प्रोटेक्शन कैसे होगा वो भी हमने डिस्कस किया था, जब एक इनकमिंग और आउटगोइंग है जहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड रेड एरो मार्क से इंडिकेट किया था, अगर याद हो तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन डिस्कस कर रहे थे हम ये कुछ दिन पहले. उस टाइम पे एरो मार्क का जब मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है या मोटा हो रहा है, इसका मतलब है देयर इज अ फॉल्ट. अगर फॉल्ट नहीं है तो उसका एरो मार्क का डायरेक्शन नॉर्मल था, ये हमने डिस्कस किया था. और hence by installing CTs on the two sides of the bus, you know how the differential protection is made. Comparison होगा current entering और leaving का, अगर difference in current होगा तो that is treated as internal fault or relay operating coil will trip the circuit breaker. And the difference in current can be used to excite the coil of a differential relay via CT secondary. Those issue trip commands to the circuit breaker on both sides of the bus. Suppose trip command will be issued to both side of the bus. Agar if you take bus, this trip command will be given to here as well as here. Both the sides of the bus bar is given trip signals in order to isolate. This CB is connected to one operating coil and the operating coil is same for this one also. If this give trip command, this circuit breaker will also trip and this circuit breaker also trip. This happens in your differential protection. नो, कैसे सीटी रेशियो सेलेक्ट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी सेलेक्ट करोगे. तो रॉन्ग मेथड ऑफ सीटी सिलेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? सपोज यहाँ पे एक, यहाँ बस बार है, यहाँ पे दो इनकमिंग फीडर है और एक आउटगोइंग फीडर है, और इनकमिंग फीडर पे टर्न्स रेशियो है 1000/1, सीटी टर्न्स रेशियो 2000/1, और आउटगोइंग फीडर पे 3000 है. बिकॉज यहाँ पे 1000/1 इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे
जो प्राइमरी करंट था सीटी का और लाइन करंट जो था 1000 एम्पियर्स था, और यहाँ पे 2000 एम्पियर्स था, इसलिए सीटी का जो रेशियो है यूज किया 2000/1। यहाँ पे टोटल करंट अगर 2000 और 1000 इनकमिंग है, ऑब्वियसली आउटगोइंग शुड बी 3000, तो 3000 की वजह से यहाँ पे सीटी रेशियो है 3000/1। अगर ऐसे सेलेक्ट किया तो suppose 1 ampere is a CT secondary that is carrying, this CT is carrying 1 ampere and this CT is carrying secondary current of 1 ampere। 1, यहाँ पे डॉट कन्वेंशन देखो, डॉट कन्वेंशन के हिसाब से दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, टोटल करंट विल बी 2 amperes। बट इफ यू टेक दिस वन, यहाँ पे 3000/1 है, तो यहाँ पे सीटी सेकेंडरी का करंट है 1 एम्पियर, तो यहाँ पे इनकमिंग 2 एम्पियर है, यहाँ पे आउटगोइंग 1 एम्पियर है, तो बचा 1 एम्पियर कहाँ पे फ्लो होगा, आपका ऑपरेटिंग कॉइल में फ्लो फ्लो होगा। अगर प्लग सेटिंग मैंने 0.5 एम्पियर्स किया, सपोज मैं अज्यूम करो मैंने प्लग सेटिंग 0.5 एम्पियर्स किया, तो इसका मतलब है इस ऑपरेटिंग कॉइल का पिकअप करंट 0.5 एम्पियर्स है। सिर्फ मेरा सीटी रेशियो गलत लेने के कारण यहाँ पे 1 एम्पियर जा रहा है, कोई फॉल्ट ही नहीं है, फिर ये ट्रिप करेगा। क्यों? क्योंकि इसका 0.5 एम्पियर पिकअप करंट था, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली ये पिकअप करेगा। पिकअप करेगा मतलब इट विल ट्रिप द सर्क्यूट ब्रेकर। फॉल्ट हुआ ही नहीं, ये ट्रिप कर रहा है सर्क्यूट ब्रेकर को। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ सीटी रेशियोस इज ब्लंडर। इट विल क्रिएट unnecessary tripping of your circuit breaker because you have selected the CT ratios wrong. This is not the way to select your CT ratios. Is it clear? या रिपीट करूं ये वाला? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर अगर याद होगा तो आप आराम से बिना पढ़े लिख सकते हो ये चीज। क्लियर है? सर रिपीट कर दीजिए पर हाँ, ओके। मेन प्रॉब्लम आता है यहाँ पे सीटी रेशियो सेलेक्ट करने का। सीटी रेशियोस कैसे सेलेक्ट करना है, बिकॉज बस बार हमने ऑलरेडी बात किया था, इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग। यहाँ पे इनकमिंग लाइन करंट 1000 एंड इनकमिंग लाइन करंट 2000 प्लस 1000 3000 हो गया, तो आउटगोइंग 3000 सेलेक्ट किया। सपोज मैंने यहाँ पे 1000/1 एम्पियर सीटी यूज किया, यहाँ पे 2000/1 एम्पियर यूज किया और 3000/1 एम्पियर यूज किया, तो इसका सीटी सेकेंडरी करंट कितना है, 1 एम्पियर। अगर 3000 एम्पियर इज अ नॉर्मल करंट दैट फ्लोस, 3000 एम्पियर इज अ नॉर्मल करंट दैट फ्लोस विदाउट एनी फॉल्ट। यहाँ पे 1000 एम्पियर जो है नॉर्मल करंट विदाउट एनी फॉल्ट, दिस इज 2000 एम्पियर विदाउट एनी फॉल्ट। अगर इनपुट ऑफ और इन प्राइमरी ऑफ सीटी this CT carries 2000 ampere, then the secondary will give 1 ampere. If the primary carries 1000 ampere, the secondary will give 1 ampere, because the CT ratio is 1000/1. It will step down 1000 amperes of current to 1 ampere. Similarly, this one, as the both are incoming feeders, the dot convention will be same for both CT1 as well as the CTA as well as CTB। तो डॉट कन्वर्शन सेम है, 1 एम्पियर यहाँ से, 1 एम्पियर यहाँ से, टोटल कितना हो गया 2 एम्पियर्स। the 2 amperes will be flowing through the pilot wires, as we have already discussed in differential protection। the operating coil और CTs के जो बीच में जो wires है उसको बोलते हैं pilot wire। the circulating current in this pilot wire is 2 amperes। suppose यहाँ पे 2 amperes है, यहाँ पे 3000 amperes is a normal current flowing, तो उसका corresponding यहाँ पे डॉट रेशियो देखो, यहाँ पे प्राइमरी पे डॉट है, यहाँ पे प्राइमरी पे डॉट है, क्योंकि दे इनकमिंग फीडर्स थे, ये आउटगोइंग फीडर है, तो यहाँ पे सेकेंडरी पे डॉट होगा। दिस इज व्हाट सेकेंड डॉट कन्वेंशन से, यहाँ पे डॉट से आपका करंट लीविंग है, बिकॉज दिस इज इनकमिंग फीडर। आउटगोइंग फीडर अपोजिट होगा, यहाँ पे डॉट पे एंटर करेगा करंट, तो यहाँ पे 1 एम्पियर एंटर कर रहा है और यहाँ पे 2 एम्पियर्स है, तो बचा कितना है 1 एम्पियर। सपोज गलती से मैंने ऑपरेटिंग कॉइल का सेटिंग, गलती से भी नहीं, सपोज मैंने सेटिंग रखा ऑपरेटिंग कॉइल का 0.5 एम्पियर्स। 0.5 एम्पियर्स का मतलब क्या है, अगर 0.6 एम्पियर्स इस रिले के थ्रू, इस रिले ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू ऑपरेट फ्लो करेगा तो ट्रिप करेगा।
अगर 0.6 हो 7 हो 0.7 हो, अगर मैंने ये प्लग सेटिंग 1 एम्पियर सेलेक्ट करता या 1.5 एम्पियर सेलेक्ट करता, तब 1 एम्पियर फ्लो होने टाइम पे ये ट्रीट करेगा नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे मेरा सेटिंग है 0.5 एम्पियर्स। 0.5 एम्पियर्स का मतलब ये है 0.5 से अगर जस्ट इवन 0.1 एम्पियर भी ज्यादा होगा या 0.2 एम्पियर्स भी ज्यादा होगा, ये मेरा रिले ऑपरेट कर ही लेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, गलती क्या हो रहा है? गलती क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे 3000/1 सेलेक्ट करने के कारण मेरा 1 एम्पियर करंट रिले में जा रहा है। 1 एम्पियर करंट रिले में जा रहा है और मेरा प्लग सेटिंग 0.5 है और पिकअप वैल्यू 0.5 है। तो 1 एम्पियर ज्यादा है 1.5 से कंपेयर करके। ऑब्वियसली मेरा रिले क्या करेगा, फॉल्ट हो गया करके ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करेगा। लेकिन आप बताओ, फॉल्ट हुआ क्या? नहीं सर। फॉल्ट है ही नहीं। जब फॉल्ट है ही नहीं तब ट्रिप कर रहा है, ये सही है? नहीं कब सर। कब ट्रिप सर करना बार बार है? से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। डिस्कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पे तो कनेक्टेड है। अब क्लियर है? आप ऑडियो बंद करो, अगर कोई ऑडियो ऑन किया तो मतलब अगर मैंने कुछ पूछा तो तब ऑन करो और तुरंत बंद कर देना। क्योंकि एक दोनों वॉइस आ गया तो पूरा बाकी लोग को भी डिस्टरबेंस होगा। तो यहाँ पे बिना फॉल्ट के रिले ट्रिप कर रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज मैंने सीटी रेशियो जो है गलत सेलेक्ट किया। तो इसलिए सीटी रेशियो सही सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है इन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बस बार। ये वाला प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी बाकी चीजों में, क्योंकि वो दोनों सीटी एक ही लाइन पे था। तो आपको 1 एम्पियर से आपको 0 एम्पियर 1 - 1 0 एम्पियर फ्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इनकमिंग फीडर्स कितने हैं और आउटगोइंग फीडर्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो इसकी वजह से आपका सीटी रेशियोस उसके हिसाब से सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे मैंने मान लिया एक और इनकमिंग फीडर है, उसका भी रेशियो समथिंग मान लो 1000/1 है। तो मैंने यहाँ पे 4000/1 एम्पियर सीटी सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे कितना हो गया इनकमिंग करंट? 3 एम्पियर्स हो गया अगर एक और लाइन हो तो। यहाँ पे 3 एम्पियर्स और यहाँ पे 1 एम्पियर, तो 2 एम्पियर्स इसमें फ्लो हो जाएगा रिले में। तो फिर से ट्रिप कर लेगा, क्योंकि फॉल्ट है ही नहीं फिर ट्रिप कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दिस इज वेरी मच नेसेसरी एंड absolute necessary to select correct CT ratios while doing the protection of bus bar। तो करेक्ट CT ratios कैसे सेलेक्ट करना है? so that the zero current or less than the setting value of current should flow through this operating coil of the relay. Then you can select the thus you will select the correct method of CT ratios such that सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट के लिए आपका रिले ऑपरेट करे। अगर फॉल्ट नहीं है, नहीं ऑपरेट करना है ये। और दिस इज अ थिंग यू हैव टू डू। The method of selecting CT ratio on the basis of maximum primary current seen by an individual feeder is not correct। तो प्राइमरी करंट के हिसाब से आपको सीटी रेशियो सेलेक्ट करना गलत है। तो सेकेंडरी आप सीटी रेशियोस कैसे सेलेक्ट करना है? तो यहाँ पे सीटी रेशियोस कैसे सेलेक्ट करना है? सपोज 1000 एम्पियर्स इज योर इनकमिंग करंट। यहाँ पे मैंने 3000/1 सेलेक्ट किया। अगर 1000 एम्पियर फ्लो हुआ तो यहाँ पे 3000 एम्पियर फ्लो होगा तब भी मेरा 1 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगा। तो आपको 1 एम्पियर अगर 1000 एम्पियर्स है तो 1/3 एम्पियर यहाँ पे आएगा। अगर 2000 एम्पियर्स है यहाँ पे 3000/1, मतलब सीटी यहाँ पे भी 3000/1 सेलेक्ट किया, 3000/1 सेलेक्ट किया, 3000/1 सेलेक्ट किया। तो इससे 2/3 करंट आएगा, इससे 1/3 करंट आएगा। 1/3 प्लस 2/3 विल बी 1 एम्पियर। एंड यहाँ पे जो सेकेंडरी आउटगोइंग फीडर का जो करंट था 1 एम्पियर। 1 - 1 will be 0 एम्पियर। प्लग सेटिंग मेरा 0.5 है, तो अब रिले ऑपरेट नहीं करेगा। दिस इज हाउ यू विल सेलेक्ट द सीटी रेशियो।
Clear? The CT ratios for all CTs in bus in differential scheme is maximum out of feeder currents, or 1 ampere or 5 ampere. Types of faults. सेम सारी चीज में आ रहा है इक्विपमेंट में, इंटरनल फॉल्ट और एक्सटर्नल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट को थ्रू फॉल्ट भी बोलते हैं। अगर कोई एग्जाम में थ्रू फॉल्ट के कोई क्वेश्चन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कभी पढ़ा नहीं है। थ्रू फॉल्ट या एक्सटर्नल फॉल्ट बात बराबर है। हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में इसकी बात की थी। थ्रू फॉल्ट क्या होता है, एक्सटर्नल फॉल्ट को क्या होता है, दोनों बराबर। थ्रू थ्रू फॉल्ट या एक्सटर्नल फॉल्ट एक ही है। internal fault and external fault, these are the two basic types of fault that occur in bus bar. And requirement of a unit protection is that the differential scheme should respond to internal fault and should not respond to external fault. तो आपका यूनिट प्रोटेक्शन मतलब बस बार यूनिट, बस बार को एक यूनिट बोलते हैं। अगर उसको प्रोटेक्ट करना है तो आपको डिफरेंशियल स्कीम कौन से फॉल्ट्स के लिए रेस्पॉन्ड करने के टाइप का यूज करना है, बिल्कुल सिर्फ इंटरनल फॉल्ट्स के लिए। बिकॉज एक्सटर्नल फॉल्ट्स के लिए आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फेल हो जाएगा, बिकॉज दोनों CT1 और CT2 का करंट सेम हो जाएगा और फिर से जीरो करंट फ्लो होगा ऑपरेटिंग कॉइल से, आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगा। तो आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इन यूनिट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन में, जैसे बस बार यूनिट में प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन शुड बी यूज ओनली फॉर इंटरनल फॉल्ट, नॉट फॉर द एक्सटर्नल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए अदर प्रोटेक्शन स्कीम यूज करेंगे। अगर कोई एक्सटर्नली फॉल्ट हो गया तो अदर प्रोटेक्शन स्कीम यूज करेंगे। इंटरनल फॉल्ट के लिए सिर्फ आपका बस बार प्रोटेक्शन यूज करेंगे। इंटरनल फॉल्ट के लिए कैसे यूज करेंगे, इंटरनल फॉल्ट, यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो यहाँ पे सपोज फॉल्ट करंट 30,000 एम्पियर फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो होना था, 3,000 फ्लो होना था। यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, 30,000 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अगर 3,000/1 रेशियो है तो 30,000 का कितना हो जाएगा, सेकेंडरी करंट 10 एम्पियर्स हो जाएगा। तो 10 amperes is the magnitude of current that is flowing through this operating coil of the relay. If this the setting is 0.5 ampere but the flowing current is 10 amperes, then the relay will trip the circuit breaker. if यहाँ पे कौन सा प्रोटेक्शन यूज किया, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। कौन सा फॉल्ट है, इंटरनल फॉल्ट है, इसलिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज किया। अगर कोई एक्सटर्नल फॉल्ट, यहाँ पे कोई फॉल्ट होता, सपोज यहाँ पे कोई फॉल्ट होता है या यहाँ पे फॉल्ट होता है, इसको एक्सटर्नल फॉल्ट बोलते हैं या थ्रू फॉल्ट बोलते हैं। अगर यहाँ पे फॉल्ट हुआ दैट इज एक्सटर्नल और थ्रू फॉल्ट। अगर यहाँ पे फॉल्ट हुआ या यहाँ पे फॉल्ट हुआ, यहाँ तक कहीं भी फॉल्ट हुआ, यहाँ तक कहीं भी फॉल्ट हुआ, यहाँ तक कहीं भी फॉल्ट हुआ, उसको इंटरनल फॉल्ट बोलते हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज ओनली यूज फॉर इंटरनल फॉल्ट, नॉट फॉर द एक्सटर्नल फॉल्ट। अगर कोई फॉल्ट यहाँ पे आया या यहाँ पे आया या यहाँ पे भी आया, that will be treated as external fault. We'll use other protection schemes, not the differential protection. Differential protection is only used for internal faults. ये अब रिपीट करके बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझो कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नो, एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए अगर मैंने यूज किया तो क्या होगा, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ, लेट दिस बी द एक्सटर्नल फॉल्ट एंड हैविंग फॉल्ट करंट ऑफ 30,000 एम्पियर। यहाँ पे जो CT प्राइमरी था 3,000 एम्पियर बाय 1 एम्पियर था, तो इट विल कैरी a maximum current of 30,000 ampere that will easily saturate. The saturation will happen to this CT, the shaded part CT, the outgoing one CT will get into saturation because of this external fault. And suppose यहाँ पे 10,000 amperes और यहाँ पे 20,000, ऑब्वियसली यहाँ पे 30,000 amperes एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 20,000 आने की वजह से ही फ्लो हो रहा है। अगर 3,000/1 पे CT रेशियो है तो 10,000 फ्लो हुआ, तो यहाँ पे 3.33 एम्पियर्स और यहाँ पे 6.66 एम्पियर्स, तो टोटल हो गया यहाँ पे 10 एम्पियर्स। 10 एम्पियर्स सपोज हम मान लेते हैं, यहाँ पे 10 से कम होगा क्योंकि आपका CT सैचुरेट हो गया है, उस एक वैल्यू पे बाद सैचुरेट हो गया, तो 10 एम्पियर्स तो नहीं कैरी करेगा। लेट अस से समथिंग लाइक 4 एम्पियर्स फ्लो हो रहा है, तो 10 - 4 इज द 6 एम्पियर्स।
It is the maximum current that is flowing through this relay operating coil. तो यहाँ पे आपका CT सैचुरेट हो गया, तो एक्सटर्नल फॉल्ट्स के लिए आप ये प्रोटेक्शन नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे सिर्फ इंटरनल फॉल्ट्स के लिए आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज कर सकते। The mal-operation of the busbar differential protection on external fault is caused due to non-ideal behavior of the CT. Ideal behavior of the CT should be, it should produce the incoming based on the output in primary current, it should produce corresponding secondary current. Instead of that, it is suppose यहाँ पे 30,000 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करना था 3000 पे 1 प्रोड्यूस कर रहा है, 30,000 पे 10 एम्पियर प्रोड्यूस करना था, लेकिन ये सैचुरेट हो गया, लेस देन 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। So it is showing non-ideal behavior. This non-ideal behavior during external fault is the uh, making the mal-operation. This mal-operation of bus bar, this can be equally important for your objective questions. Mal-operation of bus bar in differential protection is happening due to saturation of CTs. Non-ideal behavior of CTs because they are carrying excessive primary current around 30,000 amperes. If it carries instead of 3,000 amperes, it will obviously saturate. CT will obviously saturate. That will, अगर saturate हो गया तो maximum current नहीं, उसके corresponding current नहीं और कम current flow होगा, तो that indicates your CT is not behaving ideally. कैसे behave करना था लेकिन उसके अलग से बिहेव कर रहा है, अगर अलग से बिहेव कर रहा है देन इट इज वर्थलेस, यूजलेस टू यूज इन दैट टाइप ऑफ फॉल्ट। इसलिए एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन नहीं यूज करना। नाउ करेक्शन, करेक्शन क्या कर सकते हैं? व्हेन ड्यू टू एक्सटर्नल फॉल्ट वन ऑफ द सीटीज गेट सैचुरेटेड, द डिफरेंशियल रिले कॉइल नीड्स टू बी restrained फ्रॉम ट्रिपिंग, यही होना चाहिए। तो वी कैन easily accomplish this by connecting a high resistance known as stabilizing resistance in series with the differential relay coil। तो differential relay coil के series में अगर stabilizing resistance कनेक्ट किया तो ये वाला जो प्रॉब्लम आ रही थी नॉन आइडियल बिहेवियर ड्यू टू एक्सटर्नल फॉल्ट, दैट कैन बी करेक्टेड। दिस स्टेबलाइजिंग रेसिस्टेंस शुड बी ऑफ such value that under the worst case of maximum fault current, the full saturation of CT may be, the current through the differential coil is less than the pickup value at the same time. It should respond to minimum internal fault current. It should not respond to external fault current. The stabilizing resistance should be selected such that it should have minimum fault carry minimum internal fault current, not external fault current। यहाँ पे ये है stabilizing resistance in series with your relay operating coil। This is how you use stabilizing resistance in order to correct the saturation that is happening in the CT due to external fault. This, after connecting this stabilizing resistance, then you can eliminate or you can reduce the non-ideal behavior that is happening in the previous case। So आपका minimum internal fault के लिए ही आपका जो रिले है, डिफरेंशियल रिले है, वो ऑपरेट करे, अदरवाइज नहीं ऑपरेट करे। नाउ डॉट कन्वेंशन आपको पता ही होगा, आई डोंट थिंक यू नीड एन अगेन रिपीटिशन ऑफ द डॉट कन्वेंशन। डॉट मार्किंग्स यूज्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग करंट इन द सीटी सेकेंडरी सर्किट। अगर डॉट एंटरिंग का अगर आपने इनकमिंग ले लिया तो आउटगोइंग विल बी dot in the opposite side, that you know rule of dot convention says that when the current enters the dot mark on the primary side, the current must leave the similarly marked dot mark on the secondary side, vice versa। अगर current enters the dot mark on the secondary side होगा तो current should leave on the primary side, vice versa, दोनों में पॉसिबल। डॉट कन्वेंशन तो आपको काफी बार पढ़ा होगा अपने इसमें भी। और पीएस क्लास का क्लास क्या होता है? पीएस क्लास ही यूज करते हैं बस बार प्रोटेक्शन में। तो प्रोटेक्शन क्लास है ये एक, दिस इज वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन क्लास। इसका नाम आता है 5P10 और 5P10 अनडिजायर्ड डिफरेंस इन करेंट्स इन द सिटी सेकेंडरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। टू आर मोर सिटीज ऑफ क्लास 5P10 उसका क्लास है, अगर कोई सिटी का है उसका क्लास नंबर लिखा होगा नेम प्लेट पे, उसका क्लास है 5P10 हो सकता है या 5P20। दैट इज द नेम बाय द जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लोग देते हैं।
दिस इज नॉट नेसेसरी, आपको ये स्किप कर देते हैं। कुछ जो सिलेबस में है उसके हिसाब से चलता है। आपको ये स्लाइड तो शेयर कर दूंगा। हाँ, स्टेबिलिटी रेशियो क्या है? The ratio of maximum external fault current for which the scheme remains stable to the minimum internal fault for which it operates. S is given by fault current external maximum to the fault current internal minimum. This is called stability ratio. ये एक सर्क्यूट का है, एक पायलट वायर का है। पायलट वायर वही है जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, जो सीटी वाला। ये भी नहीं चाहिए। वाई बस बार प्रोटेक्शन in main receiving substation is not in line currently। ये नहीं चाहिए आपको। हाँ, bus bar protection is an important part of the part of power system, as the system voltage has been increasing and the short circuit capacities are building up day by day. It is not advisable to leave the bus bars unprotected on a primary basis. So it is must and should essential to protect your bus bar। एक और टॉपिक तो एक सेकंड।